A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I hope everybody can see the slides. Slides nazar aa rahe beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. thank you. So today, Yes, sir. today we will be talking about cementitious materials. Here you can see the mortar. Here you can see how we can make the mortar and the concrete. I hope already you people have seen these pictures. These are the topics which we will be trying to cover. There's the cementitious materials. Then we will talk about introduction about mortars, methods of preparation of mortars, that how we can make the mortars. Then we will be talking about the properties and the practical applications of mortars. Introduction about concrete. This will be the second topic of today's class. Then what are the components and how we can manufacture concrete. Then the properties of the concrete, types of concrete, and finally we will be talking about the effects of various chemicals on concrete. So introduction about mortars. Mortars can be defined as a paste formed by mixing water, a fine aggregate, and a binding material, usually cement, in a specified proportion. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मोटर में हम सीमेंट, सैंड और पानी मिलाते हैं, जबकि कंक्रीट में उसके साथ हम कोर्स एग्रीगेट भी मिलाते हैं. Sand is fine aggregate, whereas crush is coarse aggregate. So the mixing of fine aggregate, cement and water, इससे जो हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम mortar बोलते हैं. This paste hardens on drying and binds the bricks, stones or concrete blocks together. अभी ये जो पेस्ट हमने बनाया है ये सख्त हो जाता है, जब खुश्क होने पे ये सख्त हो जाता है. और आप लोगों ने अगर ब्रिक्स की दीवारें उससे बनाई हो, उसमें यूज किया हो, तो उसको बाइंड करता है. स्टोन्स की दीवारों, स्टोन्स को आपस में कंबाइन करता है, बाइंड करता है. और इवन कंक्रीट ब्लॉक्स के अगर आपकी दीवार है तो उसको भी कंबाइन करता है. तो दिस इज द पर्पस. आप इसको दीवारों की चुनाई में यूज कर सकते हैं, प्लास्टर के लिए यूज कर सकते हैं. नाउ द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टर, हाउ वी कैन मेक दिस. The art of mixing different ingredients, different components, that is the fine aggregates, cement and water of a mortar in suitable proportion, in addition to water, to form a paste of proper consistency having uniformity throughout the mix, is called preparation of mortars. अभी हम जब mortar बनाते हैं तो उसमें हम fine aggregate, सीमेंट और वाटर को खास प्रोपोर्शन में मिक्स करते. इस तरह नहीं है कि आप बगैर हिसाब किताब के बस सैंड भी डाल दें, पानी भी डाल दें और सीमेंट भी डाल दें. नहीं, एक खास प्रोपोर्शन के हिसाब से आप 1:4, 1:5, 1:6. 1 means 1 part is cement, 6 part is sand. That is called 1:6. ठीक है. फिर उसी हिसाब से फिर हम पानी डालते हैं. वाटर सीमेंट रेशो हम कैलकुलेट करते हैं और उसी हिसाब से हम पानी डालते हैं. The different ingredients are the binding material and fine aggregates. So the binding material is the cement and fine aggregate is the sand. There are usually 5 common types of mortars. कितने किस्में हैं mortar के? 5. Number 1 is cement mortar, lime mortar, mud mortar, lime cement mortar, or this is combined mortar, इसको gauge mortar भी कहते हैं. And the last one is lightweight mortar. Cement mortar जिसमें cement होता है is a combining material. Lime mortar जिसमें lime होता है is a combining binding material. And mud mortar आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में मुख्तलिफ जगहों पे लोग जब घर बनाते हैं तो वहाँ पे प्लास्टर के लिए वो mud mortar यूज करते हैं. मड क्ले से जो मोटर बनाते हैं वही यूज करते हैं. फिर हम लाइम और सीमेंट दोनों को कंबाइन भी हम डाल सकते हैं मोटर बनाने के लिए, और उसको गेज मोटर कहते हैं. The last one is the lightweight mortar. वो मोटर जो वजन में लाइट हो वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं. So let's talk about the methods of preparation of mortar. Methods of preparing some common types of mortars can be described by the following methods. Number 1, preparation of cement mortar. कि आप cement mortar कैसे बना सकते हैं. Cement mortar can be prepared by using the following methods. आप हैंड मिक्सिंग से बना सकते हैं, आप मशीन मिक्सिंग से बना सकते हैं. So let's discuss the hand mixing. This method is generally adopted when small quantity of mortar is required. ये तरीका आप कब अडॉप्ट कर सकते हैं? जब आपको स्मॉल क्वांटिटी में मोटर चाहिए हो तो आप ये जाके आप हैंड मिक्सिंग कर सकते हैं. आप
मैनुअली मोटर बना सकते हैं। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पोरस प्लेटफॉर्म इज प्रिपेयर्ड नियर द साइट ऑफ वर्क। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जो जिस जगह पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, जहाँ पे आपको मोटर की जरूरत है, वहां पे आप सरफेस को क्या करते हैं, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक प्रॉपर सरफेस बनाते हैं। दस वहाँ पे जो घास फूस हो, जहाँ पे रूट्स वगैरह हो और जो जड़े वगैरह होते हैं, उसको आप साइड पे करते हैं, उसको उसकी कंपेक्शन करते हैं उस जगह की, ताकि वहाँ पे वो जो जगह है, वो जो मोटर वाला पानी है वो एब्जॉर्ब न कर सके। वहाँ पे आप आराम से उसमें जो क्ले की मिक्सिंग या इस तरह की इम्प्योरिटीज वगैरह हो, वो फिर मोटर में ना आए। तो उस जगह को हम क्लियरली साफ करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, द सैंड इज मेजर एंड ड्राई स्ट्रेट इन द स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन एंड इज लेड ऑन द प्लेटफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर हम क्या करते हैं कि जो स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट से आप रेशो 1:5 में मोटर बना रहे हैं, तो 1:5 मीन्स एक पार्ट आपका, लेट से आप एक बैग मोटर बना रहे हैं, एक बैग आप सीमेंट का मोटर बना रहे हैं, तो उसी एक बैग के हिसाब से आप अगर यू आर यूजिंग बाय वॉल्यूम मेथड और यू आर यूजिंग बाय वेट मेथड, उसी के हिसाब से आप अगर 1:5 मोटर बना रहे हैं तो 5 बैग्स के वॉल्यूम के बराबर आप सैंड डाल दें इस प्लेटफॉर्म पे, इस जगह पे, और उसके टॉप पे आप क्या करें कि एक बैग सीमेंट डाल दें। फिर उसको आप खुश्क मिक्स करें। The required quantity of cement is then evenly spread over the sand. आप क्या करें फिर इस सैंड के ऊपर, इस फाइन एग्रीगेट के ऊपर जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि एक बैग सीमेंट आप बना रहे, तो एक बैग सीमेंट आप इसके ऊपर डाल दें, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि हर जगह पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, हर जगह पे मटेरियल दैट इज द सीमेंट वो प्रॉपर तकसीम हो। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या करें, both these ingredients are mixed and dry state। इस सैंड और सीमेंट को आप क्या करें, फाइन एग्रीगेट्स और सीमेंट को आप ड्राई कंडीशन में बेलचे के जरिए से, इस बेलचे के जरिए से, इस शावल के जरिए से आप उसको मिक्स करें 2 to 3 times until its colors become uniform। 2 to 3 times आप इसको मिक्स करें, तब तक आप मिक्स करें जब इसका पूरा शक्ल यूनिफॉर्म आपको नजर आना शुरू हो जाए। उसके बाद क्या करें, अ डिप्रेशन इज देन फॉर्म इन द सेंटर ऑफ मोटर मिक्स। यू कैन सी दिस डिप्रेशन। ये सारा काम करने के बाद ड्राई कंडीशन में इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक डिप्रेशन बनाते हैं। ये डिप्रेशन किस चीज के लिए बनाते हैं, पानी के लिए, पानी डालने के लिए इसमें हम एक डिप्रेशन बनाते हैं। वाटर इज एडेड टू दिस ड्राई मिक्स। फिर इसमें हम पानी ऐड करते हैं। वंस यू हैव एडेड द वाटर, उसके बाद हम क्या करते हैं, द होल मास इज अगेन टर्न्ड ओवर ट्वाइस और थ्राइस टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी। इसको दिन पानी समेत हम इसकी मिक्सिंग करते हैं, 2 या 3 दफा इसको दोबारा हम मिक्स करते हैं, और जब हमारे पास प्रॉपर कंसिस्टेंसी, प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी का मिक्स बन जाता है, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। देयर आर some rules। Nearly 28 liters of water per bag of cement is required for making the mortar of suitable consistency। यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी का मोटर बनाने के लिए जब आप एक सीमेंट बैग का मोटर बनाते हैं, तो उसके लिए आपको तकरीबन 28 लीटर का पानी जरूरत होता है। बाकी आप यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। इफ योर वाटर सीमेंट रेशियो इज 1.2, so you can write water divided by cement is equal to 1.2। so water is equal to 1.2 multiplied by the weight or the weight of the cement bag, that is 50 kilogram। so 50 kilogram multiplied by 1.2, so this will give you the weight of water in kilograms। you can convert these kilograms into liters or liters to kilogram, and then you can add this water into the mix in the mortar। a cement mortar should be prepared in small quantities। क्या कहते हैं कि आप जब सर मोटर ये बनाते हैं रिपीट कर small लेंगे quantity प्लीज। में बनाएं। जी बेटा। सर प्लीज ये रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आई सर। कौन सा बेटा? सर ये वाला सर, ये जो क्वांटिटी सर रेशियो जिसमें आपने नहीं बताया सर 1.2 मल्टीप्लाई बाय 50 सर, ये केजी वेट फाइंड करने के लिए सर। अच्छा, लेट मी रिपीट इट। ओके, थैंक यू बेटा। वाटर सीमेंट रेशियो हम कैसे निकालते हैं? वाटर सीमेंट रेशियो यूजुअली वी आर राइटिंग वाटर, आप लोग लिखते हैं वाटर डिवाइडेड बाय सीमेंट, वाटर डिवाइडेड बाय सीमेंट is equal to 1.2।
लिख लिया बेटा आप लोगों ने? यस सर 1.2 सीमेंट को मसावात के उस साइड पे ले जाए, राइट हैंड साइड पे ले जाए। तो वाटर विल बी इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय सीमेंट। ठीक है बेटा, यस सर कर लिया? 1. यस सर अभी लिखे 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 50, 50 कितना आ रहा है? 12.60। 12.60 यस सर 6 हाँ, तो कितना बन गया? 60 kg। 60 kg तो नॉर्मली 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर, या? So this is the quantity of water required for making this motor. लेट्स से आप रेशो चेंज करते हैं कि नहीं, मुझे वाटर सीमेंट रेशो में कम रखता हूँ, 1.1 रखता हूँ, फिर उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करें वाटर की क्वांटिटी। आप कहते हैं नहीं, मुझे ज्यादा वर्केबल पेस्ट चाहिए, स्ट्रेंथ की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आई विल गो फॉर 1.3। फिर आप कहते हैं नहीं, आई नीड 1, द वाटर सीमेंट रेशो शुड बी 1, मुझे ज्यादा सख्त मोटर की जरूरत है। या जो प्लास्टर के लिए हम बनाते हैं उसमें कोशिश करते हैं, जो मेसन है वो आपको कहते हैं कि इसमें पानी कम करो, लेकिन जब चुनाई के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कहते हैं इसमें पानी ज्यादा करो, क्योंकि वहां पेपर उसको वर्केबिलिटी की ज्यादा जरूरत होती है, वो आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। जबकि प्लास्टर में अगर आप ज्यादा पानी डालें तो फिर वो दीवार के साथ उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज कम हो जाती है, वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, उसमें फिर मैसन का परागरस नहीं निकलता है, परागरस भी नहीं निकलता है और काम भी वो एडहेशन उसमें उसी तरह नहीं रहती है। इज इट क्लियर नाउ बेटा? यस सर। यस सर क्लियर हो गया सर। ठीक है बेटा, ओके जी बेटा, डू यू वांट टू से समथिंग? सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोपोर्शन किस यूज के लिए इस्तेमाल होता है? हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। You will learn this by your experience when you will go to the field, when you will study the second semester this concrete technology. I will teach you the mixed design, and then you will go to the lab and you will perform some tests on it. Okay, so you will learn these things. ये बड़े आराम से पता चल जाता है बेटा, but still you have ठीक है asked question. Any other question बेटा? इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटा? No, sir. Any question so far? नो सर। Okay beta, so the last sentence is a cement mortar should be prepared in small quantities. आपको मैं बता रहा था कि आप small quantity में बनाएं। क्यों small quantity में बनाएं? Which can be used before the initial setting time of the cement, ताकि आप उसको जल्दी खत्म कर सकें। क्योंकि अगर आप जल्दी खत्म नहीं कर सकते, लोग क्या करते हैं, सुबह मसाला बनाते हैं, मोटर बनाते हैं और शाम तक इस्तेमाल करते हैं। जब खुश्क हो जाते हैं तो कहते हैं इसमें पानी डाल दो, लेकिन फिर साथ में सीमेंट नहीं डालते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। आपको मैंने बताया था इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, अभी आज भी आ जाएगा इस लेक्चर में, कि इनिशियल सेटिंग टाइम वेरी करता है सीमेंट के हिसाब से, और इट वेरीज फ्रॉम 30 to 90 मिनट्स। तो आप कोशिश करें इतना मसाला बनाएं कि आप 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के दरमियान में आप उसको इस्तेमाल कर सके। इसके बाद अगर आप वही मसाला इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो प्रॉपर्टीज है, वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगी, उसमें उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उसमें जो बाकी जो ड्यूरेबिलिटी है, बाकी सारी चीजें, उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम क्वांटिटी में मसाला बनाएं और कोशिश करें कि 1 घंटे से लेके 90 मिनट तक आप उसको इस्तेमाल कर सकें। That was about the hand mixing. Now we have machines are available for making the mortar. आप लोगों ने ये मशीन देखे होंगे। You can use this for concrete as well as you can use this for mortar. So the small machines are normally used for mortar, big machines are normally used for concrete. This method is used when large quantity of mortar is required continuously at a fast rate. Hand mixing में अगर आपको याद हो तो हम कह रहे थे कि थोड़े क्वांटिटी में आपको मसाला बनाना चाहिए और जल्दी इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मशीन मिक्सिंग की काफी जरूरत होती है। If you have machine, so it is very useful. इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, पानी के ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सीमेंट के ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और प्रॉपर यूनिफॉर्म मिक्स आपको मिल जाता है। अगर मशीन अवेलेबल है तो यूज द मशीन, ट्राई टू यूज द मशीन।
अगर मशीन अवेलेबल नहीं है देन यू कैन गो फॉर हैंड मिक्सिंग। मशीन अगर आपके पास है तो यू कैन गेट द मोटर वेरी इजीली एंड क्विकली एंड continuously. In this method, mixing up ingredients of mortar is done in a machine which is known as mixer. इसको क्या बोलते हैं? इसको mixer बोलते हैं बेटा। Cement and sand in specified proportions are put into the drum of the mixer. क्या करते हैं? इस ड्रम में हम सैंड डालते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट डालते हैं, फिर उसके बाद इसको ड्राई मिक्स करते हैं और साथ साथ फिर पानी डालते रहते हैं। एकदम सारा पानी नहीं पहनते क्योंकि फिर ये एकदम सख्त हो जाता है, बैठ जाता है। तो हम आराम आराम से तो जो पानी हमने कैलकुलेट किया है, से आपने 60 लीटर पानी ऐड करना है या 50 लीटर पानी ऐड करना है। उस 50 लीटर पानी को आप तकसीम करते हैं कि लेट से हमें 5-5 लीटर डालना है, फिर ये जो साथ साथ रोटेट हो रहे तो फिर आपने और डालना है। और वंस यू सी दैट इट हैज ऑलरेडी बीन मिक्स प्रॉपर्ली, इसका जो मोटर का जो कलर है दैट इज यूनिफॉर्म, सो देन यू कैन take out all the materials in the bogies or in wheelbarrow, जो हाथ गाड़ी होती है उसमें आप डाल सकते हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। In this method, mixing of ingredients of mortar is done in a machine which is known as mixer. Cement and sand in specified proportions are put into the drum of the mixer and then required quantity of water is immediately added before revolving the drum. After this, the drum is revolved for a sufficient period to form uniform mixtures of required consistency or required uniformity. So this is the procedure how you can use the machinery or the mixture for making the mortar. Now coming towards preparation of lime mortar. अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे सीमेंट सैंड मोटर। सीमेंट सैंड मोटर हम मैनुअली कैसे बना सकते हैं, सीमेंट सैंड मोटर हम मशीन से के थ्रू कैसे बना सकते हैं, एंड देन कमिंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ लाइम मोटर। Lime mortars and surkhi mortars are prepared by grinding the ingredients in a specified manner. कैसे आप बना सकते हैं लाइम मोटर या सुर्खी मोटर? इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जो मटेरियल्स है, उसको आप एक खास तरीके से ग्राइंड करते हैं, उसको पीस लेते हैं। देन the purpose of grinding is to slag the unslaked particles of lime and to make an intimate mixture or proper mixtures of sand or surkhi and lime so that every particles of the aggregate is covered uniformly with the cementing material. इसमें हम क्या करते हैं कि आप लाइम ले लेते हैं या सुर्खी अगर आप यूज करते हैं तो सुर्खी ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसमें हम पानी डाल लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि when you are adding water to the lime then this process is known as slaking of water. इसके साथ साथ आप इसको क्या करते हैं, इसकी जो इसमें जो लम्स होते हैं, जो गांठ होते हैं, इसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसकी हम क्या करते हैं, उसकी ग्राइंडिंग करते हैं ताकि वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और यूनिफॉर्म मसाला लाइम मसाला हमारे पास बन जाए। क्योंकि जब आप उसको ब्रिकवर्क में इस्तेमाल करते हैं दीवार में, सो दैट इट कैन बी स्प्रेड प्रॉपरली इजीली, और वहाँ पे ब्रिक वगैरह आप यूज कर रहे हैं, स्टोन्स में आप इस लाइम को यूज कर रहे हैं, so that it can cover the whole brick or the stones uniformly. And as we are using this as a cementing material over here, this lime, so it with the cementing material it will cover uniformly all the aggregates or the stones or the particles. The lime mortar is required for repair work in small quantity, can be prepared by mixing the ingredients in a specified proportions in a small mortar pit by manual labor. आप एक स्मॉल पिट बना सकते हैं और उसी में फिर आप मैनुअली आप ये मसाला बना सकते हैं लाइम मोटर, अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। पुराने स्ट्रक्चर्स के लिए आपको मैंने बताया था, जितने भी पुराने स्ट्रक्चर्स बने हैं वो वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सीआर आपने शेयर किए इनके साथ, स्टूडेंट्स के साथ? यस सर, हमने देखी है। जी बेटा, तो वहाँ पे रिपेयर के लिए जो पॉइंटिंग करते हैं स्टोन्स के बाहर, स्टोन्स के ऊपर, वो भी उसी के लिए आप इसको हैंड मिक्सिंग मोटर बना सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट है, अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में मोटर चाहिए
तो यहाँ पे आई विल एक्सप्लेन दिस, जिस तरह हम गुड़ बनाते हैं, और दोस्त हु आर फ्रॉम दोस एरिया जिन्होंने देखा हुआ उसको हम गाने कहते हैं, तो इस इज written over here Gani. So this is the same procedure. Preparation of lime mortars. Both the lime mortars and surhi mortars required in large quantity are prepared by following methods: by bullock driven mortar mill or Gani. You can see this is the bullock driven. You can see this is uh, this is the mortar mill or bullock driven mortar mill. This method is adopted when large quantity of lime mortar is required at a time. In this method, a mortar mill driven by pair of bullocks, here you can see, is used for grinding the mortar. The Gani can be loaded twice in 12 hours, and 12.8 cubic meter to 4 cubic meter of mortar can be prepared at each time depending upon the size of the mill. अगर ये साइज छोटा हो तो आपको कम क्वांटिटी में आपको मोटर मिल सकता है, अगर ये साइज बड़ा हो तो आपको ज्यादा क्वांटिटी में मोटर मिल सकता है। Importance of mortar mill. A bullock driven mortar mill essentially consists of a circular trench. This is a circular trench of about 6 to 9 meter in diameter. इसका diameter कितना होता है? 6 to 9 meter, which is generally trapezoidal in section. Do you know trapezoidal? ये बता। सर ये जो बुलक सर ये जो बेल घूम रहे हैं सर, इसके साथ जो पहिए है सर, ये ग्राइंड करते हैं सर, ये जो अंदर के जो स्पेस है सर ये तो खाली है सर। ये वाला, ये तो सिर्फ डायग्राम है बेटा, ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ ये व्हील लगा हुआ है, ये रूलर है, ये पहिया है ये। तो जब ये बुलक इस तरह घूमते हैं तो इसके साथ ये जो वजन है ये भी घूमता है, और ये दिस वजन इज ट्राइंग to grind this mortar and mix this mortar, this lime mortar. I'm explaining this, but let me know, do you know trapezoidal? आप लोगों ने इस तरह का सेक्शन देखा है? ये this parallel, this one is parallel to this, these dimensions are the same, yeah, this one and this one. The slopes, ये slope ट्रेपीजियम सर। yeah, do you know Sir, trapezoidal? जी, जिसकी 2 साइड्स पैरेलल हों और बाकी 2 साइड्स पैरेलल ना हों। दो साइड पैरेलल हो, दो साइड पैरेलल हो, और जो दो साइड पैरेलल ना हो उसका स्लोप सेम हो। जी सर। जो साइड वाले होते हैं इसका स्लोप सेम होता है। तो ये जो सेम होता है, दिस इज इन ट्रापेजॉइडल। खबर उठता कब बेटा अपना माइक बंद कर दें। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Everybody knows the trapezoidal section? यस सर। Yes, sir. आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग इसमें अभी आप इंटरनेट पे लिखिए ट्रापेजॉइडल सेक्शन, तो आपके पास इस तरह का शक्ल नजर आएगा। इस तरह ये जो लाइन है ये और ये, these two are not parallel, but this line and this line is parallel, or the slope of this line and this line is the same. This is called trapezoidal section. The depth of the trench is about 38 centimeter. इस trench का depth होता है 38 up to 38 centimeter. A grinding stone ruler or stone wheel, ये जो मैं बता रहा था आपको, this is a grinding stone or ruler or stone wheel which can be moved freely is placed inside the trench. इस ट्रेंच के अंदर हम इसको पाइवोट करते हैं किस चीज से? The stone wheel is attached to a horizontal wooden shaft. ये horizontal wooden shaft के साथ attached है, which is pivoted at the center of circular trench. Yeah, this is always at the center of this trench. So when these bullocks are moving, yeah, it is grinding this wheel or this stone or this stone wheel or this stone roller. This is mixing
and this is grinding the mortar. In the shaft is driven by a pair of bullocks. The stone rollers moves inside the trench. This one. The mix of mortar placed inside the trench is ground by the mowing stone wheel, and thus proper mixture of different ingredients of mortar is obtained. जब these bullocks जब ये रोटेट करते हैं इसके इर्द गिर्द, देन ये जो व्हील है, ये जो रोलर है, ये जो स्टोन व्हील है, ये जो लाइम मोटर इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको प्रॉपर मिक्स करता है और आपको प्रॉपर मोटर मिल जाता है. In this method, non-hydraulic lime mortar are prepared by slaking the quick lime or fat lime to be used in the mortar. इसमें हम क्या करते हैं कि जो नॉन हाइड्रोलिक लाइम मोटर होता है उसकी हम स्लेकिंग करते हैं. आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोलिक लाइम और नॉन हाइड्रोलिक लाइम में क्या फर्क है. हाइड्रोलिक लाइम वो लाइम होता है जिसकी स्लेकिंग हो चुकी होती है. नॉन हाइड्रोलिक लाइम वो लाइम होता है जिसकी स्लेकिंग नहीं हो चुकी होती है. उसको स्लेक करने के लिए उसमें आप पानी ऐड करते हैं. So by slaking the quick lime or the fat lime or the rich lime to be used in the mortar. The slaked lime is then mixed with sand in specified proportions with or without addition of water. क्योंकि इससे पहले से आपने slaking की हो चुकी होते हैं. So if you want, you can add sand with this in specified proportion. And now this is ready. If you want, you can add some more water to make it more workable, or otherwise there is no need of adding water. The mixing is done on a platform or in a mixer. इसके बाद जब आप इसको बाहर निकालते हो उसके साथ सैंड वगैरह मिलाते हैं तो उसको आप एक प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हैं या in a mixer में भी कर सकते हैं. In case the lime to be used is in the dry hydrated form, it is mixed in sand in a specified proportions and dry state. In case the lime to be used is in the dry hydrated form, आपको ड्राई हाइड्रेटेड फॉर्म में आपको लाइम चाहिए. आप फिर क्या करते हैं, देन इट इज मिक्स्ड इन सैंड इन अ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन ड्राई स्टेट. आप फिर ड्राई स्टेट में उसके साथ मिक्स करते हैं, फिर उसके साथ पानी की जरूरत नहीं होती है. द मिक्स इज देन ग्राउंड thoroughly in the mortar mill with sufficient quantity of water as already discussed. इसके बाद आप क्या करते हैं कि उसकी जब आप ग्राइंडिंग करते हैं उसके बाद आप sufficient quantity of water आप उसको ऐड करते हैं. उसके बाद क्या होगा, lime surhi mortars are prepared by mixing the slaked lime with surhi in specified proportions. Almost the same procedure, वही तरीका है बेटा. वहाँ पे हम लाइम यूज कर रहे थे, यहाँ पे लाइम सुर्खी मोटर यूज कर रहे हैं. ऊपर में हम सैंड वहाँ पे यूज कर रहे थे, यहाँ पे आप सुर्खी इसके साथ ऐड कर सकते हैं. Are prepared by mixing the slaked lime with surhi in specified proportions. The mix is then ground in the mortar mill. The sand is then added to the mix and the whole mix is then thoroughly ground again. Gauge mortars are prepared by mixing and grinding all the ingredients except cement in the mortar mill. Gauge mortar अगर आपको याद हो, आपको मैंने बताया था कि उसमें स्लाइम भी होता है और सीमेंट भी होता है. तो आप लोग यहाँ पे सीमेंट नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हम स्लेक करते हैं, वाटर ऐड करते हैं. तो अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो इसकी हार्डनिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो आप सीमेंट यहाँ पे न डालें, सीमेंट आप बाद में डाल सकते हैं इसके साथ. Then the specified proportion of cement is added just before the mortar is to be used for the purpose. सबसे आखिर में आप क्या करें, उसके साथ सीमेंट मिक्स करें और सीमेंट मिक्स करने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से. और आपको मैंने बताया था कि ब्रिक वर्क में भी यूज कर सकते हैं और स्टोन वर्क में भी यूज कर सकते हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स में भी यूज कर सकते हैं. इसके बाद है ड्रिवन मिल के बाद है पावर ड्रिवन मोटर. पावर ड्रिवन मोटर मिल, तो आप इसको पावर जो इलेक्ट्रिसिटी से आप इसको रन कर सकते हैं और जनरेटर के थ्रू आप रन कर सकते हैं. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन अ स्टेडी एंड अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ लाइम मोटर इज रिक्वायर्ड ऑन अ लार्ज स्केल. आपको लार्ज स्केल में कंटीन्यूअस सप्लाई और आपको उसमें दरमियान उसमें ब्रेकेज ना हो, कंटीन्यूअस सप्लाई आपको चाहिए. ये ना हो कि अभी थोड़ा टाइम चाहिए, नहीं टाइम नहीं, आपको sufficient quantity of water available है. आपको throughout the day आप किसी भी वक्त आपको चाहिए तो you can use this machine. In this method, a power driven pan type mortar mill is generally used
फॉर ग्राइंडिंग द मोटर। ये देखिए इसमें ये पहिया लगे हैं, तो इसके थ्रू आप इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। And this shop, this runs with the help of generator or with electricity or external force. So this is all about the lime motor. If you have any question, we can discuss. After that, we will talk about the mud motor. मड मोटर सबसे आसान है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने हो सकता है बनाया भी हो। जी बेटा शफात, आपका माइक ऑन है। शफात सर ये जो लाइम है ये भी तो सीमेंटेशियस मटेरियल है, तो इसमें हम सीमेंट क्यों ऐड करते हैं? फिर आपको मैंने बताया था कि लाइम इज टेकिंग टाइम। आपको याद है वो 24 आवर, 1 वीक, 1 मंथ, याद है आपको? यस सर, वो याद है, वो याद। जी, तो आप सीमेंट डालेंगे तो यू विल इंक्रीज दिस सेटिंग टाइम और दिस हाइड्रेशन रिएक्शन। तो आपको जल्दी वो आपको दीवार और उसकी मजबूती जल्दी आपको मिल जाती है। और सर जिसको हम वो स्पिन सीमेंट कहते हैं, वो यही लाइम होता है या और कुछ होता है? नहीं, वो अलग, वो सीमेंट है, वो प्रॉपर सीमेंट है, वो लाइम नहीं है। दैट इज कॉल्ड व्हाइट सीमेंट। जी शाफात, यू हैव अ क्वेश्चन? सर ये जो बुलिक मिल है, मोटर मिल, और ये पावर ड्राइवन मिल जो है, इसमें सिर्फ हम ग्राइंडिंग करते हैं सर? ग्राइंडिंग भी करते हैं और मिक्सिंग भी करते हैं बेटा। मिक्सिंग भी करते हैं। स्लैकिंग भी होती है उसमें। वो जब ग्राइंडिंग के साथ साथ आप उसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म मिक्स करते हैं, उसमें पानी भी डालते हो। जो स्लैकिंग हमने कहा था ना, वो भी साथ साथ होती रहती है। सर हम हाइड्रोलिक लैम यूज कर सकते हैं इसमें? हाइड्रोलिक लाइम, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोलिक लाइम? मींस जो पहले से उसमें वाटर जो होता है। देखिए बेटा, इसमें एक लफ्ज लिखा था, स्लैकिंग हुई होती है। स्लैकिंग साथ साथ करते हैं, ठीक है? अगर वो इस तरह के फॉर्म में हो, दैट इज हैविंग द लार्जर साइज पार्टिकल्स, या उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं हुई हो, it has already some water but it is in the larger size particles, yes you can do that। क्योंकि ये जो व्हील है, ये जो पहिया है, जब ये घूमता है तो ये उसको मिक्स भी करेगा और उसकी ग्राइंडिंग भी करेगा, उसको साथ साथ पीस भी करेगा, पीसेस में कन्वर्ट भी करेगा। सर आपने जो वीडियो सेंड की थी लैम मोटर की, सर उसमें उन्होंने हाइड्रोलिक लैम यूज किया था, लेकिन वो पाउडर फॉर्म में था पहले से। और पहले से पाउडर फॉर्म था, मैं तो so then they were just using for mixing, but normally हर जगह पे पाउडर फॉर्म में नहीं अवेलेबल होता है। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? सर इसमें ये सुर्खी क्यों ऐड की थी? सुर्खी क्यों ऐड करते हैं? that was the requirement of the project। क्योंकि आपने देखा होगा, ये इस्लामिक कॉलेज की बिल्डिंग है, इसकी जब मुरम्मत करते हैं तो ये तो पुराने बिल्डिंग्स है, इनकी आप ये सीमेंट मोटर आप यूज नहीं कर सकते, सीमेंट वाला मोटर आप यूज नहीं कर सकते, इसी के लिए आप सुर्खी मोटर यूज करते हैं। ओके सर। ये क्वेश्चन सर सुर्खी कैसे होती है? सुर्खी कैसे होती है? आप क्लास में नहीं थे? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सुर्खी कैसे होती है। ये जो ब्रिक के जो पाउडर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड सुर्खी। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो लाइम सुर्खी मोटर होती है, इसमें हम सैंड डालते हैं? क्या चीज जी? सैंड सर, हम लाइम सुर्खी मोटर्स में सैंड डालते हैं? If you need, you can add. Okay sir। Okay, let's go to the next topic, the mud mortar. Preparation of mud mortar. I hope everybody has seen how they can make the mud mortar. Mud mortar is generally prepared from the clay soil. जो clay soil होता है उससे हम mud mortar बनाते हैं। Locally available at site of works. Here you can see these guys are busy in making this mud mortar. The common practice is to remove the top layer of earth up to 20 to 30 centimeter depth, and the soil lying below the level is then dug out. क्या करते हैं कि हम जो सरफेस होता है उसको, उसके जो टॉप है अप टू 1 फुट तक, उसको हम हटा देते हैं, साइड पे करते हैं। उसमें जो जड़ी बूटियां होती है वो उसको भी साइड पे कर देते हैं। फिर उसके बाद जो मट्टी अवेलेबल होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको डग आउट करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। If suitable site is not available at site of works, अगर प्रोजेक्ट साइट पे आपको किसी जगह अवेलेबल ना हो जहाँ से आपको ये क्ले मिल जाए, ये मट्टी मिल जाए,
फिर क्या करते हैं, देन द सेम इज टू बी ब्रॉट फ्रॉम अ साइट नियरेस्ट पॉसिबल। आप किसी करीब वाले साइट पे जहाँ पे आपको ये मिट्टी अवेलेबल हो वहां से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। all the lumps in the clay of earth are broken and then sufficient quantity of water is added and left for a day। क्या कहते हैं, इसमें जो लम्प्स होते हैं, जो ढीले होते हैं, वो हम उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, फिर उसमें पानी ऐड करते हैं और एक दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं ताकि वो पानी को प्रॉपर एब्जॉर्ब कर सके, so that we can easily mix them on the next day। The whole mass is then thoroughly mixed by adding required quantity of water and overturning with shovel। बेलचे से आप उसकी overturning करते हैं, mix करते हैं, so as to make the mortar of proper consistency or uniformity। The main quality that mortar should possess। Now coming towards the properties of mortar। Good mortar possess the following properties। कौन कौन से properties होने चाहिए mortar में? The main quality that mortar should possess is adhesion। अगर एडहेशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर ये दीवार के साथ या मटेरियल के साथ कैसे चमकेगा? तो गुड मॉर्टर शुड प्रोवाइड गुड एडहेशन टू बिल्डिंग यूनिट्स, दैट इज ब्रिक्स, स्टोन्स, ब्लॉक्स एटसेट्रा। मॉर्टर शुड बी वाटर रेजिस्टेंट। आप मॉर्टर यूज करते हैं तो दैट शुड रेजिस्ट द वाटर, इट शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रेजिस्टिंग द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, इट शुड नॉट अलाउ द वाटर टू पेनिट्रेट इनसाइड द स्ट्रक्चर और इनसाइड द ब्रिक्स। डिफॉर्मेबिलिटी ऑफ मॉर्टर शुड बी लो। अगर इस पे आप लोड अप्लाई करते हैं, इसकी जो डिफॉर्मेशन है वो कम से कम होनी चाहिए। मॉर्टर शुड चीप, सस्ता हो, इजीली अवेलेबल हो और कम पैसे आपके खर्च हो मॉर्टर पे। मॉर्टर शुड बी इजीली वर्केबल इन द साइट कंडीशन। साइट कंडीशन जो है आपके, उसके हिसाब से वो आसानी से आप उसको इस्तेमाल कर सके, उस पर वर्क कर सके। आपके जो मेसन्स है, आपके जो लेबर्स है, उस पर कम से कम खर्च आ जाए, आपके लेबर्स और मेसन्स पे कम से कम खर्च आ जाए। द मोबिलिटी ऑफ मॉर्टर शुड बी गुड। इसका जो मोमेंट है, मोबिलिटी है, वो अच्छा होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स द मॉर्टर टू बी पेव्ड थिनली एंड इवनली। आप मॉर्टर को जितना थिन आप नियर उसका बनाना चाहते हैं बना सकते हैं और उसको पेव्ड कर सकते हैं, उसकी लेवलिंग कर सकते हैं प्रॉपरली, इवनली। इट शुड पोसेस हाई ड्यूरेबिलिटी। जो मोटर आप इस्तेमाल करते हैं इट शुड बी हाईली ड्यूरेबल, क्योंकि टाइम के साथ ख़राब हो जाता है, तो इस पर आपका दोबारा जब आप इसकी मुरम्मत वगैरह करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो इस पर आपको दोबारा खर्च आते हैं। तो इट शुड बी ड्यूरेबल सो दैट इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, गुड मोटर शुड सेट क्विकली। अभी जो आपके एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम ये सीमेंट क्यों ऐड करते हैं इसमें, टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हैं कि तब बढ़ा सकते हैं कि आपका जो मोटर आप यूज करें वो क्विकली सेट हो, हार्ड हो जल्दी से। तो दवा पे देन यू कैन ऐड सम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट टू इम्प्रूव दिस और to increase this setting or to have early setting of the motor. Cracks should not be developed in the joint formed by mortar। जहाँ पे आप जॉइंट्स में आपने मोटर इस्तेमाल किया हुआ है, ब्रिक्स के जॉइंट्स पे या स्टोन्स के जॉइंट पे या ब्लॉक्स के जॉइंट पे, उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। It is desirable to last for a long period of time without losing the appearance। इसकी जो अपीयरेंस है, इसकी जो खूबसूरती है, ये लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल हो। ये ना हो कि ये किसी खास वक्त के बाद या बहुत शॉर्ट टाइम के बाद ये खराब हो जाए। तो दिस ऑल शुड बी द प्रॉपर्टीज। अगर ये प्रॉपर्टीज मौजूद है मोटर में, देन it will work for a long time, it will be durable, and it will be economical, it will be cheap, okay, and the maintenance cost will be less of your structure. Now, what are the applications of mortar? Already we have discussed, but let's discuss it again. Several applications of mortar are as: it is used in masonry to bind the stones, bricks or concrete blocks together। आपको मैंने बताया था कि कंक्रीट के दीवार में, स्टोन के दीवार में या ब्रिक के दीवार में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। It provides an even bit to stones, bricks or concrete blocks and prevents their inequalities from bearing upon one another। हम प्रॉपर जब मोटर हम डाल लेते हैं दीवार के ऊपर, मोटर ब्रिक के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर या स्टोन के ऊपर, तो उससे हमें एक लेवल सरफेस मिल जाता है। जब आपको लेवल सरफेस मिल जाता है तो उसके ऊपर आप दोबारा दूसरा ब्लॉक रख सकते हैं, ब्रिक रख सकते हैं,
स्टोन रख सकते हैं, तो उसमें वो इनइक्वलिटी नहीं होती है लेवल की. It is used for pointing the joints of masonry or for plastering the surface of masonry to protect it from weather and to give the work a pleasing and smooth finish. इस मोटर को आप पॉइंटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्टोन मैसनरी में या ब्लॉक मैसनरी में पॉइंटिंग, वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि पॉइंटिंग क्या होता है, उसमें आप देख लें. तो स्टोन्स के दरमियान में जो जॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर हम ये मोटर लगा देते हैं और उसकी पॉइंटिंग करते हैं, उसको इस तरह सारा उसको प्रॉपर कवर करते हैं. उसमें डिजाइन भी बने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा. So it is actually preventing these giants from water and also from weather. In concrete, it is used to bind the particles of coarse aggregates into one solid mass. अगर इसी मोटर में आप क्या करें कि कोर्स एग्रीगेट डाल दे, इससे आपका कंक्रीट बन जाता है. तो दिस मोटर इन द कंक्रीट में क्या करता है, ये कोर्स एग्रीगेट को एक सॉलिड मास बनाता है.